Now today, good morning students. We'll start a new chapter, manufacturing final accounts. No manufacturing account. तो सबसे पहले समझना है who is manufacturer. Manufacturer कौन है? A manufacturer is a person who purchase goods in one form. See, for example, raw material. He purchased raw material and sells them into another form. He convert that raw material after doing some process and convert it into finished goods. After applying some process to them is called as manufacturer. The process or manufacturing means what? The process of converting the raw material. The process of converting the raw material into finished goods is called as manufacturing. Say, for example, you have purchased a wood and from that wood you have manufactured furniture. You have purchased steel sheets. From that steel sheets you have produced vessels. You have purchased the leather. From that leather you have produced leather jackets, leather belts, leather purse, okay, and many more things of leather. So manufacturer is a person who purchased goods in one form, example raw material, and sells them into another form, finished goods, after applying some process on them. Or manufacturing means cost converting the raw material into finished goods is called as manufacturing. Manufacturing account is nominal account. Manufacturing account is nominal account. Next, manufacturing account is prepared to determine or ascertain cost of finished goods. तो हम लोग को when we purchase raw material, now manufacturer purchase what? Raw material, and that raw material has to be converted into finished goods. तो raw material को finished goods में convert करने के लिए जो भी खर्चे आएंगे that will be debited to manufacturing account. तो manufacturing account is prepared to calculate or determine or ascertain cost of finished goods. हमको raw material को finished goods में convert करने के लिए कितना खर्चा लगा, okay, that cost is ascertained by preparing manufacturing account. तो manufacturing account में तुम लोग को ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा सर? कॉस्ट मिलेगा. सर कौन सा कॉस्ट मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड मिलेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग में ना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना नेट प्रॉफिट आएगा, सिर्फ हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे उससे. ओके सर, कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और आई कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स. measuring manufacturing cost of finished goods are transferred to trade account. तो जो भी गुड्स बन जाएगा, नाउ मैंने रॉ मटेरियल लिया, ओके, उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, तो हम कौन सा अकाउंट, हम कौन से गुड्स से ट्रेडिंग करेंगे? विल डू ट्रेडिंग ओनली ऑफ फिनिश गुड्स. तो जो भी गुड्स तैयार हो गया है या हमने प्रोड्यूस कर लिया है, दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज वी कैन डू ट्रेडिंग ऑफ ओनली ऑफ फिनिश गुड्स, नॉट ऑफ रॉ मटेरियल और नॉट ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस. ओके, तो हम ना ही रॉ मटेरियल को सेल कर सकते हैं, ना ही हम डब्ल्यूआईपी मींस वर्किंग प्रोग्रेस. सर डब्ल्यूआईपी मींस व्हाट? सेमी फिनिश गुड्स. कुछ काम हो चुका उस पे, कुछ काम बाकी है. वी कैन नॉट डू ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. ओके, तो सॉरी, ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी. वी कैन डू ट्रेडिंग ओनली ऑफ फिनिश गुड्स. तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो वो मालूम है, ट्रेडिंग मींस व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर. Trading account shows gross profit, while manufacturing account shows cost of goods sold, means cost of producing finished goods. Trading account क्या show करता है? Gross profit, while manufacturing account shows cost of goods sold, which include direct expenses. तो in case of manufacturing concern, all direct expenses means I can say factory expenses, manufacturing expenses या production expenses
आर डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, अगर तुम मैन्युफैक्चर हो तो तुम 3 टाइप के गुड्स में डील करोगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल। फर्स्ट यू विल परचेज व्हाट? रॉ मटेरियल। Raw material will be converted into work in progress. Work in progress means semi-finished goods. कुछ percentage of work has been completed and some percentage of work is pending, means still has to be processed for converting into finished goods. So second is WIP, means working in progress, abbreviation is WIP, and third is finished goods. So in case of manufacturing concern, there are 3 types of goods. That is, I can goods or I can get stock. Okay, opening and closing stock of raw material, opening and closing stock of WIP, and opening and closing stock of finished goods. Okay, now third, manufacturing account deals with raw material and WIP. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में opening and closing stock of raw material and opening and closing stock of WIP will be recorded in manufacturing account only. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? हम एडजस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि जब गुड्स, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या फिनिश होता है, राइट? तो फिनिश गुड्स जब बनेगा इट विल बी ट्रांसफर टू डीलिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स is recorded in trading account because we can make trading. हम ट्रेडिंग सिर्फ फिनिश गुड्स का ही कर सकते हैं, हम रॉ मटेरियल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील विद रॉ मटेरियल एंड WIP, means opening and closing stock of raw material and WIP is adjusted in manufacturing only. उसका डिफरेंस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो कहाँ जाएगा? ओके, फिनिश में जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट मींस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट में सारे एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट में इनकम आएगी। दो इनकम आती है इसके अंदर, और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। इधर क्रेडिट तो ट्रेडिंग में क्या होगा? डेबिट। हम देखेंगे फॉर्मेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद हाउ टू फाइंड आउट रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओके, तो तुमने पहले भी किया है। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक दिया है वो ले लो। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी परचेज रॉ मटेरियल है, अगर रिटर्न्स रहेगा तो माइनस कर देना, रिटर्न्स रहेगा तो उसमें माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लो, जो ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिर जो भी हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है वो ले लो ना। रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो कुछ खर्चे भी होंगे, उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना। रॉ मटेरियल परचेज करना है तो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके हमारे गोडाउन तक, हमारे फैक्ट्री तक कोई लाने का खर्चा होगा। तो कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट इनवर्ड, डॉक चार्जेस, इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वो भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है माइनस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम रॉ मटेरियल कंज्यूम से माइनस करेंगे, इसको हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। कंज्यूम मींस हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश बनाने के लिए कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया हुआ है। फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो कंज्यूम फाइंड करना है हम लोग को। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस इंसिडेंट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा कहाँ पे? दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम is debited to manufacturing account. This raw material consumed is debited to manufacturing account. Okay, because ये हमको हम का यूज करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो तो हम सारा डेबिट करने वाले, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गए रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
एड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट नहीं है वो कॉस्ट है, मींस ओके जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लगता है, फैक्ट्री फैक्ट्री रेंट, ओके। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दोनों का नाम एक ही है। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और आई कैन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो पहले तीनों डायरेक्ट ऐड करो और बाद में इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके। और बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, ये सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके। तो जो भी हमने सीखा था, ओके, कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, तो सर इसमें क्या है, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, ओके, और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो जो भी फैक्ट्री में खर्चे होते हैं, जो भी खर्चा फैक्ट्री में होता है, सारे के सारे एक्सपेंसेस, ओके, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इट विल बी डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके। कहाँ डेबिट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मींस ये सारे के सारे मेरा कौन सा कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओके। नाउ लेट अस सी द format of manufacturing account, okay. So this is the format of manufacturing account. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहेगा वो लिख डालो पहले। तो सबसे पहले आएगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आ गया, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो फिर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP means working progress means semi finished goods, तो opening stock of WIP डेबिट होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ओपनिंग को डेबिट करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है, ओके, या क्रेडिट करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए हैं, सारे डेबिट होंगे। चेक करते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, वर्क्स मैनेजर सैलरी मींस फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, डिजाइन एक्सपेंसेस, बहुत सारी कंपनीज होती है, ओके, ओके पॉइंट, उसमें हमको डिजाइन करना पड़ता है, तो डिजाइन करने के लिए खर्चा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कार कंपनी है तो डिजाइन द कार, फिर कपड़ा है तो कपड़ा डिजाइन करना पड़ता है, तो कपड़ा डिजाइन का पैसा पे करना पड़ता है, तो डिजाइन एक्सपेंस अगेन इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, स्टोर्स ऑयल एंड ग्रीस, सैलरी टू सुपरवाइजर, पावर एंड फ्यूल और मोटिव पावर, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, तो जो भी फैक्ट्री जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, तो जो भी फैक्ट्री एसेट्स होगा, जो भी फैक्ट्री एसेट्स होगा उस पे डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा, ऑलवेज कहां पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट, इसमें पीएनएल में नहीं आता है, हाँ जो भी ऑफिस एसेट्स हैं जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, मोटर व्हीकल है, वो सब कहां पे आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। फिर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एसडी एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो सारे के सारे एक्सपेंस हम क्या डेबिट करेंगे, ओके। तो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। नाउ नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मींस भंगार, ओके। नाउ सपोज वी हैव यूज्ड द रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल सपोज क्या आएगा, कॉपर का है, तो कॉपर मैंने यूज किया लेकिन कुछ कॉपर वेस्ट हो गया इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, ओके। समझो मैं कॉपर के वेसल बना रहा था, तो कुछ कॉपर वेस्ट होता है, लेकिन कॉपर का भी सेलेबल वैल्यू होता है, कॉपर का भी सेल मार्केट में वो भी 300-400 रुपए किलो बिकता है, तो जो भी स्क्रैप बचेगा उसमें क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब मैंने कॉपर परचेस किया रहेगा
मैंने यहाँ डेबिट किया रहेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में डेबिट किया रहेगा, और उसको बेच के जो पैसा आया हुआ है वो हम क्या क्रेडिट करेंगे। क्यों? से फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल में उसमें यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया उसको मैंने, उसमें से 1000 का स्क्रैप बच गया जो मार्केट में बिक सकता है। ओके, तो 1 लाख में से 1 लाख का मैंने स्क्रैप बेच डाला, तो एक्चुअली मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? 99,000 होगा। तो कॉस्ट ऑफ कितना है? 1 लाख है, उसमें से जो मैंने स्क्रैप है, स्क्रैप बेच डाला 1000 में, उसी रॉ मटेरियल का मैंने स्क्रैप बेच डाला। ओके पॉइंटर। तो एक्चुअली मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? 99,000 ही होगा, क्योंकि वही स्क्रैप को मैंने क्या बेचा और मैंने रिकवर किया, कितना रिकवर किया? 1000। तो सेल ऑफ स्क्रैप, ओके, ऑलवेज क्रेडिट ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करना है। ओके, क्यों सर? बिकॉज सेल ऑफ स्क्रैप रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस आएगा अकाउंट का, डिफरेंस में ऑलवेज डेबिट ज्यादा होगा। ओके, डेबिट ज्यादा होगा, ओके, और क्रेडिट क्या होगा? कम होगा। तो डेबिट में सारा एक्सपेंस है, क्रेडिट में सिर्फ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ये सिर्फ दो ही हमारे लिए इनकम या स्टॉक बोल सकते हैं हम लोग। माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? ये जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू अकाउंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स, या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट का, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे लिए क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये कहां पे आ गया? यहाँ पे क्रेडिट साइड। ओके, तो इधर क्रेडिट, ओके, तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो लेट अस सी ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो जो नॉर्मल हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है उससे ये अलग है। क्यों सर? बिकॉज जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, अब कहां पे आता है? वो सारे के सारे एक्सपेंस कहां पे आएंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, इसमें क्या आएगा देखते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट काफी छोटा बनता है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, सिंपल है। नाउ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस टू बी टेकन टू डेबिट सब ट्रेडिंग अकाउंट, तो इतने ही एक्सपेंस कहां पे आएंगे? डेबिट में। पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मैंने बोला था ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एडजस्टेड while preparing trading account, and opening stock of raw material, the stock of raw material and WIP is adjusted while preparing manufacturing account। तो पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो ओपनिंग दिया बोले, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस रिटर्न्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो अगर समझो कभी कभी एक तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा, वो तो आएगा, प्लस परचेज ऑफ फिनिश्ड भी दिया हुआ है। समटाइम्स मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है और मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, जितना ऑर्डर है उससे कम बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो इस केस में आई विल परचेज सम फिनिश्ड गुड्स, या मैं किसी और को बोलूंगा एक काम कर ये मेरी बना दे और जो भी बनाने का कॉस्ट होगा मैं पे कर दूंगा। ओके, तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, लेस रिटर्न्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर दो, तो डेबिट में क्या आएगा? परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस रिटर्न्स। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स को परचेज करने के लिए कोई एक्सपेंस रहेगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो ट्रांसफर हुआ है वो भी यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, परचेज अगर दिया रहेगा तो डेबिट कर दो, एक्सपेंस अगर परचेज दिया रहेगा तो एक्सपेंस ऑफ परचेज होना चाहिए, डेबिट कर दो। अगर परचेज नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स या डेबिट करोगे, जिसे हमने यहाँ पे जो क्रेडिट किया था। ओके, यहाँ पे जो हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे जो हमने जो क्रेडिट किया था वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ट्रेडिंग अकाउंट इनकम साइड मींस क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? टू बी क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल्स लेस रिटर्न्स, तो कौन सा? सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हम क्या बेचेंगे? फिनिश बेचेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड,
मींस सेल्स माइनस करोगे, और क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी क्रेडिटेड। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, परचेज अगर दिया रहेगा तो ही आएगा, अदर नहीं आएगा, एक्सपेंस ऑन परचेज दिया रहेगा तो ही आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ज्यादातर तुम लोग क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आएगा, और क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। और सेम डिफरेंस ऑफ डी अकाउंट इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगेन क्रेडिट साइड इज मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट एंड डेबिट साइड इज मोर देन ग्रॉस लॉस। तो let us see the format of trading account. तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, वो ले लो। टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में की क्रेडिट से लिखा था, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स इफ एनी दिया रहेगा तो, टू एक्सपेंस ऑफ परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर दिया रहेगा तो। क्रेडिट साइड पे सेल्स, कौन सा सेल्स, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस रन्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। क्यों, ओके, अगर रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ओके, और कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम करेंगे फिनिश गुड डिस्ट्रॉय हुआ है, तो कहां पे है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, बोला है गुड्स रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस कर देंगे। ओके, इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज अज्यूम करेंगे ये फिनिश गुड्स है, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, विल नॉट विथड्रॉ रॉ मटेरियल, will not with WIP, normally we withdraw finished goods, इसलिए goods withdrawn by proprietor again trading account credit side। goods given as free samples में हम क्या बांटेंगे, always will distribute finished goods to trading account credit side, और जो बच गया है वो closing stock of finished goods। ओके, तो opening stock plus manufacturing expenses plus purchase of finished goods plus expense on purchase of finished goods। क्रेडिट साइड में सेल्स लेसन्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। अगेन अगर रॉ मटेरियल का दिया क्वेश्चन स्पेसिफिकली तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। ओके, अदरवाइज ट्रेडिंग में आएगा। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स कम हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स गिवन फ्री सैंपल्स, अगेन गुड स्टॉक ऑफ कम हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। ओके, now the net result of trading account is either gross profit or gross loss। ये दोनों वाले में credit side is more and debit side less, means income is more, expense is less than gross profit, and if debit side is more and credit side is less, means expense is more, income is less, then it is gross loss, and this gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account। Okay, now format of profit and loss account, format of profit and loss account and format of balance sheet is same। तो जो हमने किया था सो ट्रेडिंग कंसर्न में, इससे पहले जो फॉर्मेट किया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज सेम, कुछ भी नया नहीं है। तो बस इसको हमने यहाँ पे एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस लेते थे हम लोग, ओके, जितने भी एक्सपेंस थे, कौन से एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे कहाँ डेबिट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे। और एक फर्क है, यहाँ पे 3 टाइप के स्टॉक है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू फिनिश गुड्स। तो तुम याद रखना है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स will be adjusted while preparing manufacturing account and finished goods will be adjusted while preparing trading account। okay, now given in question में क्या दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले दिया होगा ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। ओके, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमको बनानी है 4 चीज। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ बैलेंस शीट। ओके, तो दिया क्वेश्चन में रहेगा वही ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स।
ओके, एंड बनाना है हमको 3 चीज, एक 4 चीज बनानी है, एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इससे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कहाँ ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा, जीपी का ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस प्रॉफिट है तो एड टू कैपिटल, और अगर लॉस है तो लेस फ्रॉम कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 15 on final accounts of manufacturing concern. Vinayaka's trial balance as on 31st March 2020 is as follows. Opening stock of raw material, ये कहां पे आएगा, raw material consumed. Opening stock of WIP, manufacturing account debit side. Opening stock of finished goods, trading account debit side. Purchase raw material consumed, एक अगर परचेस के बारे में कुछ बोला नहीं कि रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड्स है, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज ऑलवेज अज्यूम इट इज एन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहां पे आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। बिल्डिंग असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, ट्रेडमार्क असेट्स, वेजेस manufacturing account debit side. Factory taxes, manufacturing debit. Motive power, manufacturing debit. Factory insurance, manufacturing debit. Salary to office staff, profit and loss account debit side. Office rent, profit and loss account debit side. Carriage inward, raw material consumed में आएगा। क्यों सर, carriage inward is an expenses incidental to purchase of raw material, तो raw material consume में आएगा। Printing and stationery, P&L debit. Bank charges, P&L debit. Travel expenses, P&L debit. Discount, P&L debit. Sales return, less from sales. Advertisement, P&L debit. Sales, trading account, credit side. कि सेल्स कौन सा होगा, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेटर्स असेट, डिस्काउंट P&L क्रेडिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस P&L डेबिट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, कॉर्पोरेशन बैंक मींस बैंक बैलेंस, असेट्स कैश ऑन हैंड असेट्स, एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो कोई भी स्टॉक हो हमारे लिए असेट है, तो सबसे पहले इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रॉ मटेरियल कहां पे आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। WIP कहां पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिनिश्ड गुड्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड ₹2000, तो प्रीपेड मींस लेस फ्रॉम फैक्ट्री टैक्सेस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट depreciation furniture percent, less from furniture and P&L debit. Plant less from plant and machinery and manufacturing account debit side, because plant and machinery used in factory. Trademark, again trademark कहां पे आएगा, again trading account debits, sorry, again profit and loss account debit side trademark. Building, तो बिल्डिंग कौन सा, फैक्ट्री बिल्डिंग बोला है क्या, नहीं, तो अगेन कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो याद रखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेबिटेड टू बेनिफिशियल अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग will be debited to profit and loss account. Prepare manufacturing, trading and profit and loss account for the financial year 2019-20 and balance sheet as on
31 मार्च 2020। ओके, तो हमको बनाना है क्या है, ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, गिवन क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रिपेयर मैन्युफैक्चर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो चलो इसका सॉल्व करते, इसकी फाइल में तुमको भेज दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है तो इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विनायका, in the books of Vinayaka, manufacturing account for the ended 31st March 2020 आएगा, 2020। ओके, नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट छोटा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ended 31st March 2020, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ended 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। तो हमको 4 चीज बनानी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले हमेशा क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है, राइट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम अलग से बनाएंगे, वर्किंग बना के करेंगे इसको। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1, ज्यादा एडजस्टमेंट हो तो वर्किंग ही ज्यादा बेटर तो ऑलवेज। ओके, तो फर्स्ट वर्किंग इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसको साइड में कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 2,50,000। तो 2,50,000 प्लस परचेज, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन 2,15,000। रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया है लेकिन हमको परचेज नहीं दिया हुआ है। ओके, तो परचेज इज 2,15,000, 2,15,000। फिर क्या ऐड करोगे सर, फिर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें है एक ही है कैरेज इनवर्ड, वर्ड करना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज हाउ मच, कैरेज इनवर्ड हम लोग को दिया है कहा, कैरेज इनवर्ड 2,500। तो कैरेज इनवर्ड 2,500, तीनों को ऐड कर लेते। ओके, तो आएगा 4,67,500। ओके, अब इसमें क्या माइनस कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। वो रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हेडिंग ऊपर ऑलरेडी रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हम लोग को, एक बार चेक करें। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज गिवन 85,000। तो 85,000 माइनस करोगे तो 85,000। ओके, तो डिफरेंस विल बी योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, माइनस करो कितना आता है, 4,67,500 minus 85,000. Okay, so it comes to 3,80,500. तो यहाँ पे आएगा 2 रॉ मटेरियल
कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कहाँ पे आएगा? वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना है? 3,82,500, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये भी कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट से, यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओके, ये डेबिट में आएगा। कितना दिया? 80,000, तो यहाँ पे आएगा 80,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे आएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, शॉर्ट लिखता हूं मैं, फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दिया है? ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 2,20,000, तो 2,20,000। ओके, तो ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट इसका क्या दिया? बिल्डिंग असेट्स, इस डिप्रेशन है। प्लांट एंड मशीनरी असेट डिप्रेशन है। फर्नीचर इस पे डिप्रेशन है, और ट्रेडमार्क इस पे भी डिप्रेशन है, तो चारों पे डिप्रेशन है। ओके, तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड ट्रेडमार्क। ओके, तो चलो ले लेते हैं इसको। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग, प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर एंड ट्रेडमार्क, एंड ट्रेडमार्क। ओके, कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट साइड। नाउ एक क्या सब अमाउंट ले लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है। बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, 40-30, तो 1,50,000, 3,60,000, 40 and 30, तो 1,50,000, 3,60,000 and 40,000 and 30,000। ओके, ये हो गया 40 and 30। ओके, विच इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस। वेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस इज गिवन, वेजेस दिया हम लोग को 83,000। फिर दिया है फैक्ट्री टैक्सेस, इस पे एडजस्टमेंट है, फैक्ट्री टैक्सेस ऐसा आएगा यहाँ पे। तो फैक्ट्री टैक्सेस इज गिवन एज 4,000। फैक्ट्री टैक्सेस पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड वाला। ओके, तो फैक्ट्री कॉलम लिखेंगे 4,000। यदि है मोटिव पावर, टू मोटिव पावर, तो मोटिव पावर कितना दिया है? मोटिव पावर इज 9,000, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी इस पे एडजस्टमेंट था, लाइन छोड़ना था मेरे को। यहाँ पे आएगा फोटो इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट करना बाकी, राइट। नेक्स्ट, तो मोटिव पावर इज हाउ मच? 9,000। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस 5,000, तो मोटिव पावर 9,000। फिर आएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस ये था 5,000। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ स्टाफ, ऑफिस रेंट, दोनों कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 11,000 and 10,500, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू ऑफिस स्टाफ salaries, to office rent,
ये था 11,000 और ये था 10,500। नेक्स्ट इसे क्या दिए, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमने ऑलरेडी कैरेज इनवर्ड को ले लिया है। फ्री प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग, डिस्काउंट, सब कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो कॉपी कर लेता हूँ, ये देखते कॉपी होता है कि नहीं होता ये। यस कॉपी हो गया, चलो ठीक है। तो प्रिंटिंग, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड डिस्काउंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अमाउंट भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग इसका आराम से। ये कहाँ पे आएगा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया, सेल्स डन। सेल्स इज 11,000, तो लेस फ्रॉम सेल्स, तो पहले सेल्स ही नहीं आया, बाय सेल्स, फिर लेस सेल्स डन, सेल्स डन। तो सेल्स रिटर्न इज हाउ मच, तो सेल्स रिटर्न इज 11,000, यहाँ पे आएगा 11,000। आफ्टर सेल्स क्या दिया हम लोग को, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 5,500, तो टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 5,500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो मैंने सेल्स को कहाँ लिख दिया, मैंने लिख दिया गलती से, तो इसको यहाँ से निकाल देते हम लोग, इसको यहाँ पर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ओके, now sales is 7,80,000 minus 11,000 means 7,69,000, तो ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न। उसके बाद क्या दिया है, कैपिटल लाइब्रेरी 8,50,000, तो कैपिटल कैपिटल 8,50,000। कैपिटल के बाद क्या दिया हम लोग को, डेट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, तो आएगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आएगा सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स। तो sundry creditors how much, 52 and it is 82,500, 52,000, it is पे adjustment नहीं है, 82,500। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट 3,300। डिस्काउंट के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगेन P&L डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू miscellaneous expenses 2,500। फिर so miscellaneous is 5,500। miscellaneous expenses is 5,500।
नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, यहाँ पे आएगा बिल्स, डिटेल्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स रिसीवेबल, देखते हैं अमाउंट कितना है। Bills payable is 34,000 and receivable 16,000. So this is 16,000 and bills payable is 34,000. Next, Corporation Bank means cashed bank and 98 and 9. तो इधर आएगा बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 98,000 and cash in hand, cash in hand is 9,000. Okay, now we can go with adjustments. Now, closing stock of raw material WIP and finished goods, तो सबसे इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट पे आएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड and closing stock of finished goods trading account credit side. Okay, 85, 30 and 2,05,000. फिर आएगा closing stock, closing stock पहले आएगा raw material 85,000, फिर WIP and फिर finished goods, finished goods is 2,05,000 and WIP is 30,000. ये तो हमने ले लिया है, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods, sorry, of WIP is 30,000. हमने इसका तो ले लिया क्लोजिंग स्टॉक 85,000. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods by closing stock of finished goods 2,05,000. ओके, पॉइंट क्लियर. अब तीनों को हमको उसको ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करो तो 2,05,000 प्लस 85, 2,90 प्लस 30 कितना आएगा 3,20,000, 3,20,000. तो यहाँ पे आएगा 3,20,000. तो एडजस्टमेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड 2,000, तो लेस फ्रॉम फैक्ट्री टैक्स एंड बैलेंस शीट असेट साइड. ये भी काफी सिंपल है. फैक्ट्री टैक्सेस, तो ये आप कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड. हेलो सर. हाँ, अरे हाँ सर वो फैक्ट्री टैक्सेस में से करना है ना, आपने इंश्योरेंस में से अरे कर दिया. हाँ वही हाँ. स्लीपो वाइज. ना नहीं देख, लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना अमाउंट है एक बार चेक कर लेता हूँ. अमाउंट इज 2,000, तो 2,000, तो 4 - 2 2 एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, इसमें तो बैलेंस शीट असेट रहेंगे प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस 2,000. नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन, तो इधर आएगा लेस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन एट द रेट, जो भी रेट रहेगा वो ले लेंगे. तो बिल्डिंग पे भी है, मशीनरी, फर्नीचर एंड ट्रेडमार्क, चारों पे है. ओके,
देखते किस पे कितना है। फर्नीचर 10%, मशीनरी 15%, ट्रेडमार्क is 20% and building is 5%. So building is 5%, furniture is 10%, machinery is 15%, and trademark is 20%. Okay, so chalo 5%, 7,500, 1,42,500. 15% निकालो, उसके 15% निकालो, प्लांट मशीनरी पे 15% निकालो। फर्नीचर तो बहुत सिंपल है, कितना आ रहा है 15%? फास्ट, सर 54,000। 54,000, 54, तो 3,60,000 माइनस 54 तो आएगा 3,06,000। ये 4,000। ट्रेडमार्क 20% मीन्स 6,000। ओके, तो 30 माइनस 6 आएगा 24,000। तो प्लांट मशीनरी ही सिर्फ कहां पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बाकी सबके सब कहां पे आएगा? पीएल में आएगा। ओके, तो लेते पहले प्लांट में कितना डिविजन है? 54, राइट? तो आएगा 2 डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 54,000, और बाकी सब कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इस पे भी 2 लिखा नहीं था, 2 डाल देते हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा? वो तो ले लिया हमने। अब डेप्रिसिएशन ऑन पीएनएल में किस पे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्नीचर फॉर बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग, फर्नीचर, और तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बिल्डिंग 7,500, furniture 4,000, and trademark is how much? Trademark is 20%, 6,000. चलो ऐड करो तीनों को, तो 6 + 7 13, 13 + 17, तो ये आएगा 17,500। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या दिए हैं? ये सारे जो हो हम लोग की, राइट? तो अब क्लोज करते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट हमारे क्या है? क्लोज करना हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है। चलो सबसे पहले क्लोज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम उड़ा डालते हैं। ओके, नाउ सी डेबिट हाउ मच? 6,15,000, ये मेरा डेबिट है। ओके, उसमें से जो क्रेडिट से माइनस करो, तो 6,15,000 माइनस 3,000, तो डिफरेंस विल बी
माइनस करो कितना आता है 5,85,500. 5,85,500. ये क्या आएगा बाय, कहा जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया. इधर क्रेडिट की बैलेंसिंग है तो इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं. अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा. टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ओके, यहाँ पे लिखोगे सेम चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहां क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट. कि हम लोग गुड्स परचेज नहीं कर रहे, हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो इतना आएगा 5,85,500. अब निकाल लो तुम्हारा जीपी, निकाल लो. क्या निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, तो चलो कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो. 9,74,000 माइनस 8,05,500. तो डिफरेंस आएगा मेरा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ओके, कितना आ रहा है निकालो. Sir, 1,68,500. 1,68,500. तो अगर मिल प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस पे कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आएगा 1,68,500. ओके, अब निकालते नेट प्रॉफिट निकालते. ओके, ओके, तो देखते हैं ज्यादा कौन सा साइड है. तो क्रेडिट साइड इज 1,71,800 एंड डेबिट साइड इज टोटली 71,000. तो चलो निकालो नेट प्रॉफिट. 1,08,000. 1,08,000. कितना रहे, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन कितना रहे, 1,08,000. तो 1,00,800. ओके, अब ऐड टू कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट 1,08,000. ओके, तो ये आएगा 9,50,800. ओके, तो ये हो गया हम लोग का टैली. ये 800 का लोचा क्यों आ रहा है, 800 71. तो 800 का हम लोग को फर्क आ रहा है, 800 का क्यों, क्वेश्चन देखो एक बार. तो क्या हमसे गड़बड़ कर दिया, तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा हम लोग का. ओके, तो देखो हमने कहाँ मिस्टेक की है. जीपी तो बराबर ही है, सारे अमाउंट तो बराबर लिखे हमने. तो मिस्टेक डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच 2,500, वहां मिस्टेक किया हमने. ओके, अब हम लोग का प्रॉफिट बराबर आ जाएगा. पॉइंट क्लियर. तो इस केस में हमारा प्रॉफिट आएगा 1 लाख. 1 लाख, तो यहाँ पे भी आएगा 1 लाख, यहाँ पे आएगा 9,50,000. ओके, ये हो गया 10,36,000. पॉइंट क्लियर. तो ये हम लोग का सम टैली. ओके, तो ना इस सम में तुम्हें ध्यान रखने का, सबसे पहले यू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो सबसे पहले तुम क्लोज करोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. नेक्स्ट तुम क्लोज करोगे ट्रेडिंग अकाउंट. यहां से क्या मिलेगा तुम लोग को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे. ओके, नेक्स्ट इसके बाद तुम क्या क्लोज करोगे, तुम लोग का
yes, then you will close third you will close profit and loss account. इसमें जो भी जीपी मिलेगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थर्ड विल क्लोज this account and fourth you will close what? Balance sheet. फिर तुम लोग क्या क्लोज करोगे? फोर्थ बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट मस्ट टैली. ओके, बस इतना हम लोग करना है, बाकी कुछ नया इसके अंदर है नहीं. तो दिस सम इज ओवर एंड टैली.